Hello and welcome to this next video of contract of guarantee. We have already done the chapter on contract of indemnity, and as I told you that the concept of indemnity will be used also and will be referred to also in this chapter. Now, guarantee and indemnity are quite closely related. However, there is a major difference between them. And if you remember what was indemnity, that there was a person who was the indemnifier and there was a person who was indemnified. Like I gave you example of your college ID card and share certificate. If you've seen that video, by now you will be very clear about that. I also told you that the concept of indemnity will be further elaborated in this chapter also and the forthcoming chapters also, right? In this chapter, there'll be some explanations which I'll be giving to you in another language that is Hindi so that you're able to understand it better. Okay, so let's begin this. Now, what is a contract of guarantee? It is basically a contract to perform the promise made or discharge the liability of a third person in case of his default. Now, let us assume that there is a person A. Let us say I'm A and I have taken a loan from Mr. B, right? Now, when Mr. B has given me the loan, he wanted somebody to guarantee this loan. That is, in case I'm not able to pay the loan, he should have some assurance that he can take action against somebody else so that somebody else can make the payment. Let us say that somebody else was C, right? So, in case I have taken the loan and I have not paid, that means I've committed a default. So I'll be known as a principal debtor because I'm the person in respect of whose default the guarantee is given, right? So I am the principal debtor if I am A, right? The person to whom the guarantee is given, the person to whom the guarantee is given, for example, in my case, it was B. So he is known by the name creditor. And surety is the person who gives the guarantee. Let us say C has given the guarantee, so he is the surety. So if A has taken the loan from B, okay, A has taken the loan from B and it is guaranteed by C. So A is the principal debtor, B is the creditor, and C is the surety. I hope I'm clear, right? So here what we have is a contract of guarantee. And in this contract of guarantee, we have surety, principal debtor and creditor, right? सो ए अगर बी से लोन लेता है और ए के डिफॉल्ट के लिए सी ने गारंटी दी है कि अगर ए पैसे नहीं देगा तो मैं दूंगा, तो ए प्रिंसिपल डेटर है, बी क्रेडिटर है और सी आपका श्योरिटी हो गया, ठीक है। नाउ यू कैन गो थ्रू दिस एग्जांपल व्हेन ए रिक्वेस्ट बी टू लेंड टू 10,000 टू सी। अब यहाँ पर ए बी को कह रहा है कि आप 10,000 सी को दे दीजिए और अगर सी आपको पैसे वापस नहीं देगा तो मैं दे दूंगा। सो इन दिस केस ऑल्सो देर इज अ कॉन्ट्रैक्ट ऑफ गारंटी, राइट। और इसमें क्रेडिटर कौन है? जिसको पैसे, जो पैसे दे रहा है वो कौन है? बी, राइट। और जिसको पैसे मिल रहे हैं वो सी है, ही इज द प्रिंसिपल डेटर। और जो गारंटी दे रहा है वो आपका श्योरिटी हो गया, दैट इज द ए। नाउ यू कैन लर्न ईदर ऑफ द एग्जाम्पल्स, ओके। जो मैंने आपको एबीसी बोला या ये वाला एबीसी, आप कोई भी एग्जाम्पल लर्न करके रख लीजिएगा सो दैट अगर कोई स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन आता है तो अपने एग्जाम आंसर में आप एग्जाम्पल से भी उसको एक्सप्लेन कर सकते हैं। नाउ एक्स एंड वाई दे गो इनटू अ कार शोरूम। इस वाले एग्जाम्पल को भी एक बार रीड कीजिए। ना इन दिस एग्जाम्पल आपने देखा होगा, एक्स एंड वाई कार शोरूम में जाते हैं और एक्स डीलर को कहते हैं कि लेटेस्ट मॉडल दे दीजिए वैगन आर का वाई को, और एग्री करते हैं कि अगर वाई पे नहीं करेगा, ठीक है, तो वो पे कर देगा। इस केस में अगर वाई पे नहीं करता तो कार शोरूम वाला जो पर्सन है वो अपनी मनी को एक्स से रिकवर कर सकता है। ध्यान दीजिए, इन दोनों एग्जाम्पल्स में ऐसे लग रहा है कि मैं खुद जाके बोल रही हूँ कि इसको दे दो और अगर ये नहीं देगा तो मैं दूंगा। गारंटी में अगर आपको अच्छे से समझना है तो आप इसको ऐसे याद कीजिएगा कि जरूरी नहीं कि हमेशा मैं ही बोलूं। अगर आपको पैसे की जरूरत है और आपको लेंडर ने बोला है कि भाई मैं आपको क्यों दूं, कोई गारंटी लाओ, कोई श्योरिटी लाओ, और आप मुझे रिक्वेस्ट करते हो कि आप श्योरिटी बन जाओ, तो वहां पर भी एक प्रॉपर कॉन्ट्रैक्ट ऑफ गारंटी बनता है। अगर आपको उसको ना डिमार्केट करने के लिए यही वाला एग्जाम्पल दिमाग में रखना चाहिए कि आई नीड मनी and the creditor has asked that bring a surety, so I am bringing somebody as surety. So इससे आपके आगे वाले जो कंसेप्ट है ना वो थोड़े जल्दी समझ में आएंगे, बाकी दोनों में डिफरेंस कुछ नहीं है, ठीक है, नेचर ऑफ ट्रांजैक्शन तो सेम ही है। So in this case, as you have seen, it is a contract of guarantee because X promises to discharge the liability of Y. So either ways, बोला किसी ने भी हो,
अल्टीमेटली लायबिलिटी वाई की है और प्रॉमिस एक्स कर रहा है कि अगर वाई नहीं दे पाया, उसकी तरफ से डिफॉल्ट हो गया, तो वो पे करेगा. Now, if you've seen from the above examples, you've understood that it is a tripartite agreement. यानी तीनों के बीच में एक एग्रीमेंट है, प्रिंसिपल डेटर के बीच में, क्रेडिटर के बीच में और श्योरिटी के बीच में. तो इनफैक्ट ये थ्री कॉन्ट्रैक्ट्स हो गए. एक तो प्रिंसिपल कॉन्ट्रैक्ट यानी मेन कॉन्ट्रैक्ट हुआ प्रिंसिपल डेटर और क्रेडिटर के बीच में, यानी जिसको पैसे चाहिए थे और जिसने पैसे दिए उनके बीच में. फिर एक सेकेंडरी कॉन्ट्रैक्ट हुआ जिसने पैसे उधार दिए और जिसने उस बात की गारंटी ली. Right? So I'm making it using a very layman language so that you're able to understand who and what. Because if I talk only about these terms, वो भी आ रही होगी ग्रेजुअली, बट वो अभी आपको कंफ्यूज ना कर जाए, रादर आपको क्लैरिटी अच्छे से मिले, इसलिए मैं उसको बहुत ही लेमैन लैंग्वेज में समझा रही हूँ. ना इन इम्प्लाइड कॉन्ट्रैक्ट बिटवीन द श्योरिटी एंड द प्रिंसिपल डेटर. यहाँ देखिए, ये प्रिंसिपल कॉन्ट्रैक्ट था, ये सेकेंडरी कॉन्ट्रैक्ट है, और एक ऑब्वियस कॉन्ट्रैक्ट है श्योरिटी और प्रिंसिपल डेटर के बीच में. यानी मेरे बीच में अगर मैंने पैसे लिए हैं और आपके बीच में अगर आपने मेरे डिफॉल्ट की गारंटी दी है, तो हमारे बीच में एक इम्प्लाइड कॉन्ट्रैक्ट हो गया कि पहले तो मुझे पैसे देने हैं, और अगर मैं नहीं दे पाती तो आपने देना है, और उसके बाद मैंने जो है आपको इंडेमनीफाई करना है. ठीक है. कहने का मतलब ये है कि अगर मेरे डिफॉल्ट की वजह से आपको देना पड़ जाता है पैसा, तो बाद में मैंने आपको इंडेमनीफाई भी करना है. राइट. Now, this is also an important aspect which is mentioned here, that right of surety is not affected by the fact that the creditor has refused to sue the principal debtor or that he has not demanded the sum due from him. यानी कहने का मतलब है कि श्योरिटी के राइट्स वही रहेंगे इवन इफ क्रेडिटर ने ये बोला है कि वो मेरे पे केस नहीं करेगा या क्रेडिटर ने मुझसे पैसे नहीं मांगे हैं. इस चीज को हम और बहुत आगे डिटेल में अच्छे से पढ़ेंगे. अभी टू बिगिन विद लेट अस अंडरस्टैंड दैट there are some essential features of a guarantee. This flowchart is pretty simple. You can just go through this. We've just now understood this only principal, contract, secondary, and implied between who and who. So this is pretty simple. So let us now come to the essential features of a guarantee. I would request you to read 1 and 2 points with the example given here, line by line, and then I'll explain. Now, what we see here is that the purpose of guarantee being to secure the payment of debt. यानी गारंटी का मेन पर्पस क्या है? अगर वैलिड गारंटी की हम बात करें तो मेन पर्पस क्या है कि हम डेट की पेमेंट को सिक्योर कर रहे हैं. ठीक है. यानी इसके लिए एक रिकवरेबल डेट की एग्जिस्टेंस होनी जरूरी है. यानी एक ऐसा डेट जो एक्चुअली रिकवर हो सके, उसकी एग्जिस्टेंस होनी जरूरी है, तभी तो उसकी गारंटी दी जाएगी. तो अगर प्रिंसिपल डेट ही नहीं है तो कहाँ से वैलिड गारंटी आएगी? राइट. देन कंसिडरेशन. कंसिडरेशन जैसे कि कोई भी कॉन्ट्रैक्ट होता है, ऐसे कॉन्ट्रैक्ट ऑफ गारंटी में भी कुछ कंसिडरेशन होनी चाहिए. विदाउट कंसिडरेशन अगर गारंटी का कॉन्ट्रैक्ट होगा तो वॉइड होगा. लेकिन यहां पर ध्यान दीजिएगा कि देर इज नो नीड फॉर डायरेक्ट कंसिडरेशन बिटवीन द श्योरिटी एंड द क्रेडिटर. दैट मीन्स मैंने आपसे लोन लिया, ठीक है, आप मुझे लोन दे रहे हैं और उस आपको गारंटी मिल रही है. राइट. लेकिन अगर मैं बात करूं कि आपने लोन दिया है, आपके और श्योरिटी के बीच में क्या कंसिडरेशन है? आंसर इज नो. मुझे लोन मिल गया क्योंकि वो गारंटी है, यही आपस में कंसिडरेशन है. ठीक है. सो एज पर 127 सेक्शन, कंसिडरेशन रिसीव्ड बाय द प्रिंसिपल डेटर इज सफिशियंट कंसिडरेशन टू द श्योरिटी फॉर गिविंग द गारंटी. दिस इज व्हाट आई वाज सेइंग. ठीक है. सो कंसिडरेशन जो प्रिंसिपल डेटर को क्या मिला है, लोन मिला है, दैट इज सफिशियंट कंसिडरेशन टू श्योरिटी. इसी लोन की तो वो गारंटी दे रहा है. ठीक है. बट पास्ट कंसिडरेशन इज नो कंसिडरेशन फॉर कॉन्ट्रैक्ट ऑफ गारंटी. यानी अगर पहले का भी कुछ हुआ, उसको हम यहाँ पर इन्वॉल्व नहीं करेंगे. And keep in mind, even if the principal debtor is incompetent to contract, the guarantee is valid. That means even if I am minor and I have asked for a loan and you have given a guarantee, तो गारंटी का कॉन्ट्रैक्ट वैलिड हो सकता है बीइंग अ माइनर वो मेरे अगेंस्ट प्रोसीड ना कर सके, बट श्योरिटी के अगेंस्ट वो प्रोसीड कर सकता है. बट हाँ, अगर श्योरिटी इनकॉम्पिटेंट है, देन दैट केस द कॉन्ट्रैक्ट इज वॉइड. Now just go through these examples. B ने A को रिक्वेस्ट करा है to sell and deliver to him goods on credit. A agrees to do so provided C will guarantee the payment of the price of goods. तो B ने A को बोला है, मान लीजिए मैं B हूं, मैंने आपको बोला है कि आप मुझे गुड्स उधार पे दे दीजिए. ठीक है. और आपने कहा है कि आप वो गुड्स मुझे उधार पे तो दे देंगे, प्रोवाइडेड एक थर्ड पार्टी C जो है इसकी पेमेंट की गारंटी करे. ठीक है. सी कहता है ओके मैं गारंटी कर देता हूँ. ठीक है. इन कंसिडरेशन ऑफ एज प्रॉमिस टू डिलीवर द गुड्स, यानी तुम गुड्स डिलीवर करो, मैं तुम्हें गारंटी दे देता हूँ. अब यहाँ पर सी के प्रॉमिस के लिए, सी ने जो गारंटी ली इसके प्रॉमिस के लिए एक सफिशिएंट कंसिडरेशन है कि गुड्स डिलीवर हो रहे हैं, तो गारंटी वैलिड है. यानी ही कैन नॉट से व्हाट हैव आई रिसीव्ड, आई हैव गिवन यू गारंटी व्हाट हैव आई रिसीव्ड, सो ही कैन नॉट से दैट. राइट.
Now there is another example. A sells and delivers goods to B. ए ने सेल करे और डिलीवर करे गुड्स बी को, ठीक है। सी बिना कंसिडरेशन के उसको एग्री कर रहा है कि अगर बी की तरफ से कोई भी डिफॉल्ट होता है तो मैं उसको पे करूं। तो यहाँ पर कुछ भी ऐसा गारंटी का एग्रीमेंट जो है इन्फोर्सेबल नहीं होगा, ठीक है, बिकॉज कहीं पे भी आपको कोई कंसिडरेशन का एलिमेंट नहीं दिख रहा है। So, in these 2 points, what were the main two things? That there has to be some purpose, and that purpose is a debt which is recoverable. So, एक रिकवरेबल डेट का होना जरूरी है कॉन्ट्रैक्ट ऑफ गारंटी के लिए, और कंसिडरेशन का भी होना जरूरी है। सो गारंटी विदाउट कंसिडरेशन इज वॉइड, लेकिन हाँ, डायरेक्ट कंसिडरेशन बिटवीन श्योरिटी एंड क्रेडिटर होने की जरूरत नहीं है, ठीक है। Now the next point is existence of a liability. Almost similar to what the first one was saying कि कोई existing liability या promise होना चाहिए जिसकी आप गारंटी दे रहे हैं। ये ध्यान दीजिएगा कि वो जो प्रॉमिस है या लाइबिलिटी है वो इन्फोर्सेबल बाय लॉ हो, ठीक है। लाइबिलिटी लीगली इन्फोर्सेबल होनी चाहिए, टाइम बार्ड नहीं होनी चाहिए। यू नो व्हाट इज टाइम बार्ड? यस, द सेम थिंग विच वी डिस्कस प्रीवियसली, दैट एक पर्टिकुलर टाइम के बाद जो वो लॉ ऑफ लिमिटेशन से टाइम बार्ड हो जाता है, आप उसके ऊपर केस नहीं कर सकते हैं, तो वो वाली लाइबिलिटी यहाँ पर नहीं होनी चाहिए, ठीक है। इसके बारे में और जानना हो तो आप कॉन्ट्रैक्ट एक्ट के बारे में भी पढ़ सकते हैं, कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में भी इसके बारे में पढ़ सकते हैं। एंड ऑफ कोर्स लिमिटेशन तो है ही, लॉ ऑफ लिमिटेशन। नाउ अनदर पॉइंट हियर इज नो मिसरिप्रेजेंटेशन और कंसीलमेंट। देखिए, अगर मैंने कोई भी कुछ भी चीज छुपाई है, ठीक है, अगर मैंने कुछ भी चीज छुपाई है और उसको छुपा कर गारंटी ली है, ठीक है, आपसे मैंने कुछ छुपा कर गारंटी ली है, तो यहां पर ये जो मैंने मिसरिप्रेजेंटेशन करी है, ये कंसीलमेंट करी है, इस वजह से कॉन्ट्रैक्ट ऑफ गारंटी आपका इनवैलिड हो सकता है, ठीक है। जैसे कि any guarantee which has been obtained by means of misrepresentation made by the creditor or with his knowledge and assent concerning a material part of the transaction is invalid। अब एक बार इसका क्वेश्चन, पहले एग्जांपल देखते हैं। ए ने बी को एंगेज करा है एज क्लर्क, ठीक है। मान लीजिए आपने मुझे क्लर्क रखा है और मेरा काम क्या है, आपके लिए पैसे कलेक्ट करना। मैं पैसे कलेक्ट करके आती हूँ पर कुछ पैसे अपने पास रख लेती हूँ या कुछ पैसे का हिसाब आपको नहीं दे पाती, ठीक है। अब आप कहते हैं कि भाई मैंने तुम्हें रखा था, तुमने बीच में गड़बड़ कर दी, अब आगे से अगर तुम्हें मेरे साथ काम करना तो किसी को बोलो तुम्हारे काम की गारंटी दे कि भाई तुम अगर पूरे पैसे नहीं ला रहे हो तो वो ला के देगा, ठीक है। अब सी जो है वो मेरी अकाउंटिंग की पूरी गारंटी लेता है, लेकिन ए उसको ये नहीं बताता कि उसने पहले ये गड़बड़ कर चुका है बी, जिसकी वजह से वो ये गारंटी मांग रहा है। यानी ए डज नॉट एक्वेंट सी विद द प्रीवियस कंडक्ट ऑफ बी बेसिकली, राइट। अब बी दोबारा से गलती करता है, यानी अगर मैं बी हूं तो मैंने दोबारा से गलती करी। तो अब क्या, जो सी है जिसने गारंटी दी थी कि अगर मैं गड़बड़ करूंगी तो वो पैसे भरेगा, क्या उसको पैसे भरने हैं? आंसर इज नो। क्योंकि जब मेरी पहली गलती नहीं बताई गई, ठीक है, जब मेरी पहली गलती उसको नहीं बताई गई, तो फिर दूसरी गलती के लिए वो जिम्मेदार नहीं हो सकता। देखिए, इस केस में इट इज प्रीटी ऑब्वियस कि मैं डिस्क्लोजर नहीं करूंगी, ठीक है। यूजुअली क्या होता है कि मुझे भी अगर आपसे गारंटी लेनी है तो मैं आपको सब कुछ बताऊंगी। बट ये सेंस पॉइंट ज्यादा सेंसिबल कब होता है कि जैसे मान लीजिए मैंने कोई डिफॉल्ट करा, अब आप गारंटी मांग रहे हो, तो मैं तो उसको सामने वाले को बताऊंगी नहीं कि भाई मैंने गलती करी। तो आप तो बता सकते हो कि भाई इसने गलती करी थी, अब बताओ गारंटी दोगे या नहीं दोगे। अभी भी वो देगा, देयर इट इज। आई होप आई एम क्लियर। सिमिलरली अब एग्जाम्पल नंबर 111 पढ़िए अब एक बार। इसमें क्या हुआ है कि ए ने सी को गारंटी दी है पेमेंट फॉर आयरन टू बी सप्लाइड बाय हिम टू बी। यानी कि ए गारंटी कर रहा है सी को कि वो पैसे देगा। किस चीज के पैसे देगा? उस आयरन के जो सी बी को देगा। यानी वैसे तो पैसे बी ने देने हैं, भाई सामान अगर सी जो है वो बी को दे रहा है तो पैसे बी देगा, लेकिन ए ने कह रहा है कि मैं दे दूंगा अगर वो नहीं देगा तो, ठीक है। और ये गारंटी उसने 2000 टन तक की ले ली है। अब बी और सी, ये देख रहे हैं आप, ये सी जिसने उसको सामान सप्लाई किया था और एक ये बी जिसने पेमेंट करनी है, उन्होंने प्राइवेटली एग्री कर दिया, इसको कुछ नहीं बोला, प्राइवेटली एग्री कर लिया कि बी जो है ही विल पे ₹5 पर टन बियॉन्ड द मार्केट प्राइस, ठीक है। तो मार्केट प्राइस से ₹5 एक्स्ट्रा की पेमेंट जो है बी देगा सी को। और ये पैसा जो एक्स्ट्रा दिया जा रहा है ये कुछ पुराने डेट की लिक्विडेशन में लगेगा, यानी पुराने डेट को क्लियर करने में लगेगा, जो कि ऑब्वियसली बी की तरफ से सी को ड्यू होगा। अब ये एग्रीमेंट इन्होंने ए को नहीं बताया,
ठीक है, यानी कोई पुराना डेट भी है और इस तरह से हम 5 रुपए एक्स्ट्रा दे रहे हैं, उसको सेटल भी करा रहे हैं, ये सब हमने नहीं बताया। अब मान लीजिए इस 2000 टन की पेमेंट में डिफॉल्ट कर जाता है बी, क्या ए को आप लाइबल कर सकते हो? आंसर इज नो। ए इज नॉट लाइबल एज श्योरिटी, बिकॉज आपने पहले जो चीजें टर्म्स थी वो आपने उससे कंसील करी। सो एनी गारंटी, अब देखिए यहां पर तो दोनों बता सकते थे ना, इस वाले केस में दोनों बता सकते थे, और राधा जो लोन ले रहा है या जो इस तरह से क्रेडिट टर्म्स में सामान ले रहा है उसकी ज्यादा ड्यूटी बनती थी, ठीक है। तो इस केस में दोनों बता सकते थे, ऊपर वाले केस में जिसका बनाना सेंसिबल था उसको बताना चाहिए। इधर केस हमें किसके पॉइंट ऑफ व्यू से देखना है? जिसने श्योरिटी दी, जो श्योरिटी है, जिसने गारंटी दी है। सो इसलिए सेक्शन इस तरीके से वर्डेड है दैट एनी गारंटी विच हैज बीन ऑब्टेन्ड बाय मींस ऑफ मिसरिप्रेजेंटेशन मेड बाय द क्रेडिटर और विद हिज नॉलेज एंड असेंट कंसर्निंग अ मटेरियल पार्ट ऑफ द ट्रांजैक्शन, यानी क्रेडिटर को पता है कि सामने वाले को ये बात नहीं बताई गई है, या तो वो खुद बता दे क्योंकि पैसा तो उसका इंश्योर हो रहा है, नहीं तो वो देख ले कि कोई और बता रहा है, ठीक है। अगर उसको ये भी पता है कि सामने वाला भी कोई नहीं बता रहा और वहां पर भी मेरा कोई इंटरेस्ट शामिल है, तो इस तरह की जो भी गारंटी हम अगर ऑब्टेन करते हैं तो वो इनवैलिड है। Any guarantee which the creditor has obtained by means of keeping silence also as to material circumstances, ध्यान दीजिएगा, साइलेंस अगर मटेरियल सर्कमस्टांसेस की है तभी हम यहाँ पर गारंटी को इनवैलिड लेते हैं। बट दिस इज ऑल्सो एन इम्पॉर्टेंट पॉइंट कि अगर हमने गारंटी ली, कुछ इंपॉर्टेंट बातों के बारे में हमने उनको टच अपॉन ही नहीं करा जानबूझ के कि अगर ये ओपन हो गई तो कुछ सीक्रेट आउट हो जाएगा और ये गारंटी इनवैलिड हो जाएगी, तो इन एनी केस दैट गारंटी विल रिमेन इनवैलिड। दिस इज सेक्शन 143। ये दोनों सेक्शन इंपॉर्टेंट है। अब आते हैं पॉइंट नंबर 5 एंड पॉइंट नंबर 6 पे। क्विकली रीड कीजिएगा इन दोनों पॉइंट्स को। Now where a person gives a guarantee upon a contract, पहले मैं 6 पॉइंट ले रही हूँ। अच्छा चलिए पहले 50 ले लेते हैं। देखिए, क्या गारंटी का जो कॉन्ट्रैक्ट है वो ओरल होना चाहिए या रिटर्न होना चाहिए? कुछ भी हो सकता है। तो आंसर इज सेक्शन 126 कहता है कि गारंटी ओरल भी हो सकती है, रिटर्न भी हो सकती है, ठीक है। तो दिस वाज अ सिंपल पॉइंट। नाउ लेट्स कम टू वन इंपॉर्टेंट पॉइंट दैट इज 144। दिस इज एन इंपॉर्टेंट सेक्शन। Now, where a person gives a guarantee upon a contract that the creditor shall not act upon it until another person has joined in it as co-surety, यानी मैंने ये गारंटी दी है, ठीक है, कि मैं गारंटी दे तो रही हूं पर ये तभी एनफोर्सेबल होगी जब बी भी एज को श्योरिटी मेरे साथ जुड़ेगा। कोई भी मिस्टर बी है वो मेरे साथ एज को श्योरिटी जुड़ेंगे, तो ये गारंटी वैलिड नहीं होगी अगर वो बी जो है वो ज्वाइन नहीं करता। यानी मैं ये एक तरीके से कह रही हूँ कि मैं नहीं लूंगी गारंटी, खाली इनको भी इंक्लूड कीजिए, और वो इंक्लूड नहीं होते हैं तो ये गारंटी का जो कॉन्ट्रैक्ट है ये वैलिड नहीं होगा, ठीक है। Now let's come to different types of guarantees. I hope these points are clear. I hope there is no doubt in this. There should be a purpose, proper consideration. There should be an existence of liability, no misrepresentation, no concealment. Writing is not necessary. And other co-sureties, if they're supposed to join, they have to join. Otherwise, it will become invalid. ठीक है, चलें जी टाइप्स ऑफ गारंटीज पे। चलिए, देखिए टाइप्स ऑफ गारंटीज में आपके पास सामने दिख रही है आपको एक स्पेसिफिक गारंटी, एक कंटिन्यूइंग गारंटी। तो मेन आपकी ये दो तरह की गारंटीज हैं, ठीक है। इसके बाद में थोड़ा सा एक्स्ट्रा चीजें भी लूंगी अभी इसके साथ, अपार्ट फ्रॉम व्हाट इज शोन हियर। देखिए स्पेसिफिक गारंटी क्या होती है? वेरी सिंपल, जो कि किसी सिंगल डेट या स्पेसिफिक ट्रांजैक्शन के लिए दी जा रही है, ठीक है। और जैसे ही उसकी पेमेंट हो जाती है उस डेट की, तो श्योरिटी की भी लाइबिलिटी खत्म हो जाती है। जैसे कि मान लीजिए ए ने बी को बोला कि मैं गारंटी दे रहा हूं 5 बैग्स ऑफ राइस की पेमेंट की, ठीक है। इस एग्जाम्पल को पढ़िए एक बार। Now, in this case, A is guaranteeing payment to B of the price of 5 bags of rice to be delivered by B to C to be paid for a month, for in a month। यानी B ने गुड्स डिलीवर करने हैं C को, ठीक है, और A ने गारंटी ली है, ठीक है। B delivers 5 bags to C, C pays for them। ये एक स्पेसिफिक गारंटी का केस था, बिकॉज ए इंटेंडेड टू गारंटी ओनली फॉर द पेमेंट ऑफ प्राइस ऑफ फर्स्ट 5 बैग्स। तो जैसे ही 5 बैग्स की डिलीवरी हुई, 5 बैग्स की पेमेंट हुई, ए की जो गारंटी है वो भी एग्जॉस्ट हो गई, खत्म। अब उसकी कोई लाइबिलिटी नहीं है। कंटिन्यूइंग गारंटी ऑन द अदर हैंड क्या होगा कि जब आप एक सीरीज ऑफ ट्रांजैक्शंस की गारंटी लेते हैं, ठीक है, सीरीज ऑफ ट्रांजैक्शंस,
इस केस में जब तक वो गारंटी रिवोक नहीं होती, यानी जब तक मैं उसको स्टॉप नहीं करती हूँ डेलिबरेटली नोटिस से, या इन्फॉर्म नहीं करती कि भाई अब मैं गारंटी एक्ट नहीं करूंगी, तब तक श्योरिटी की लाइबिलिटी कंटिन्यू होती है। एसेंस क्या है कि इट अप्लाइज नॉट टू स्पेसिफिक नंबर ऑफ ट्रांजैक्शंस बट टू एनी नंबर ऑफ ट्रांजैक्शंस। तो जितनी भी ट्रांजैक्शन है, मतलब मान लीजिए एक महीने में मैंने जितने भी गुड्स सप्लाई करने हैं उसकी श्योरिटी हो गई, या एक साल में जो भी मैंने आपको स्टेशनरी सप्लाई करनी है उसकी हो गई, ठीक है ना, या एक साल में जो भी मैंने सामान खरीदना है उसकी हो गई। So whatever the transaction is, if it is to a series of transactions, it can be 5 years also. It can be not clearly specified also. जितने मैंने सामान लेने हैं उसकी भी हो गई, ठीक है। तो इन दैट केस जो भी स्पेसिफिक नंबर ऑफ ट्रांजैक्शंस है उसकी तरफ नहीं आ रहा है, एंड इट मेक्स द श्योरिटी लायबल फॉर द अनपेड बैलेंस एट द एंड ऑफ गारंटी। तो अगर कुछ भी चीज खत्म हो जाता है, कोई भी, जैसे एक साल का पीरियड खत्म हो गया, अब कुछ पैसा जिसको मिलना था उसके पास नहीं आया है, तो उस पैसे के लिए वो श्योरिटी को अप्रोच कर सकता है। क्विकली एग्जाम्पल नंबर 13 एंड 14 एक बार रीड कीजिए, फिर इसको एक्सप्लेन करते हैं। अब एग्जाम्पल नंबर 13 में देखिए कि एक ही रिकमेंडेशन पे बी जो है एक वेल्दी लैंडलॉर्ड है, एक ही रिकमेंडेशन में बी ने सी को एम्प्लॉय करा है, ठीक है। यानी मान लीजिए मेरे कहने पर आपने मिस्टर सी को एम्प्लॉय करा है अपने एस्टेट मैनेजर के तौर पर, ठीक है। अब सी का काम क्या है कि वो फर्स्ट को सबसे रेंट कलेक्ट करेगा और उसको बी को देगा। ये सारे किराएदार किसके हैं, रेंट किसको मिलना था, एक्चुअली बी को। तो सी जो है बी के लिए रेंट कलेक्ट करके ला रहा है और उसको बी को 5th of every month तक दे रहा है। और मैंने रिकमेंडेशन दी है, तो मान लीजिए मैंने रिकमेंडेशन देते टाइम ये बोल दिया कि मैं गारंटी करती हूँ कि सारे पैसे आपको लाके देगा। तो इन दिस केस ए हैज गारंटीड दिस अरेंजमेंट एंड ही प्रोमिसेस टू मेक गुड एनी डिफॉल्ट। तो ये एक कंटिन्यूइंग गारंटी है, इसमें ये नहीं बोला कि पहले 2 महीने के लिए है या 3 महीने के लिए, अभी ऐसा इसमें कुछ भी स्पेसिफाइड नहीं। अगर होता तो वो स्पेसिफिक होती, ठीक है, कि भाई इस महीने के लिए मैं इसको गारंटी दे रही हूँ। देन एग्जाम्पल 14 में देखिए, ए ने बी को गारंटी किया है, बी एक टी डीलर है, टू द अमाउंट ऑफ 10,000 फॉर एनी टी ही में सप्लाई फ्रॉम टाइम टू टाइम टू सी। यानी बी जितनी भी चाय है, वो टाइम टू टाइम जितनी भी चाय सी को सप्लाई करेगा उसकी पेमेंट या तो सी करेगा, नहीं तो ए करेगा। और ए ने अपनी जो अमाउंट है उसको लिमिट कर लिया 10,000, ठीक है। अब बी ने सी को एज पर टर्म सप्लाई करी, ठीक है, और इसने जो सप्लाई करी अब 10,000 करी, उसने 10,000 की पेमेंट कर दी, ठीक है। दोबारा से उसने सप्लाई करी 20,000 की। इस केस में सी जो है ही डिड नॉट पे। अब ए की जो गारंटी है वो कंटिन्यूइंग गारंटी है, एंड अकॉर्डिंगली ही इज लायबल टू पे, बट ऑब्वियसली ओनली टिल 10,000, ठीक है। अब इनको जरा पढ़ के देखिए, वी हैव सम मोर फर्दर के स्टडीज टू डिस्कस इन दिस रिगार्ड। यहां तक एक बार पूरा पीछे से बिल्कुल बिगिनिंग से स्टार्ट करके देखिएगा, ठीक है। एनी डाउट्स, एनीथिंग वी कैन डिस्कस, स्टार्ट फ्रॉम हियर। So I hope whatever we have studied till now is clear to you. Now there is a small thing कि जब भी कोई कॉन्ट्रैक्ट ऑफ गारंटी होता है, क्या वो एक कंटिन्यूइंग गारंटी का कॉन्ट्रैक्ट है या नहीं, दिस विल बेसिकली डिपेंड ऑन द सब्जेक्ट मैटर ऑल्सो एंड द सराउंडिंग सर्कमस्टांसेस। मतलब वो सिर्फ लैंग्वेज पे डिपेंडेंट नहीं होगा, वो सब्जेक्ट मैटर पे भी डिपेंडेंट होगा और जो सराउंडिंग सर्कमस्टांसेस है उसके ऊपर भी होगा। एक एग्जाम्पल लेते हैं। फॉर एग्जाम्पल, इफ आई एग्री टू बी आंसरेबल टू के for the amount of 5 sacks of flour to be delivered to T payable in 1 month। ठीक है, अगर ऐसे टर्म्स हैं गारंटी के, दोबारा मैं बोल रही हूँ, आई एग्री टू बी आंसरेबल टू के फॉर द अमाउंट ऑफ 5 sacks ऑफ फ्लावर टू बी डिलीवर्ड टू टी पेबल इन 1 मंथ। सो यहां पर जो गारंटी है वो 5 sacks की है, डिलीवर्ड एट अ टाइम। इट्स नॉट अ कंटिन्यूइंग गारंटी टू कवर सब्सिक्वेंट डिलीवरीज, but though not exceeding whole 5 sacks, ठीक है। Continuing guarantee can be for a fixed period also, ठीक है। It is only basically speaking of continuing transactions and not the period of such transactions, ठीक है। अब सवाल आता है कि क्या कोई कंटिन्यूइंग गारंटी रिवोक हो सकती है, क्या मैं उसको रिवोक कर सकती हूँ, क्या मैं बोल सकती हूँ कि अभी तक तो मैंने कंटिन्यूइंग गारंटी दी हुई थी इसकी। मान लीजिए जैसे मैंने ऊपर वाला एग्जांपल लिया था जिसमें मेरे कहने पर आपने किसी को हायर करा है और वो आपके लिए रेंट कलेक्ट करके ला रहे हैं और मैंने गारंटी दी हुई है, ठीक है।
तो क्या मैं कभी ये बोल सकती हूँ कि बस अब मैं गारंटी इनकी और आगे नहीं लूंगी? कैन आई से दैट? द आंसर इज यस। बट ये ध्यान दीजिएगा कि इट विल बी ओनली विद रिस्पेक्ट टू फ्यूचर ट्रांजैक्शन, ठीक है? तो कंटिन्यूइंग गारंटी एज पर सेक्शन 130 क्या होगा कि वो सिर्फ फ्यूचर ट्रांजैक्शंस के लिए रिवोक होगी, और इसमें भी मैं क्रेडिटर को नोटिस दूंगी, ठीक है? सो इट हैज टू बी, इट कैन बी रिवोक्ड बाय नोटिस टू द क्रेडिटर. So we'll be discussing this point after we understand the differences also, and after we understand these points also. देखिए ये revocation of continuing guarantee आपका यहाँ पर mentioned है जो मैंने अभी आपको बोला. तो before I continue this in the next video, प्लीज आप इसको यहाँ से एक बार रीड करके रखिएगा, ठीक है? तो रिमेनिंग पोर्शंस की कब ये कंटिन्यूइंग गारंटी आपकी रिवोक होती है, किस तरीके से रिवोक होती है, पहले मैं ये वाला टॉपिक कराऊंगी, उसके बाद पीछे जाएंगे, ठीक है? तो पहले हम ये कंप्लीट कर लेंगे और फिर रिमेनिंग पोर्शन कंप्लीट करेंगे और फिर इससे कुछ क्वेश्चंस भी देखेंगे, ठीक है? तो पहले आप यहाँ तक पढ़िएगा, देन आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो. थैंक यू.